ایک دن غوث پاک عبادت کر رہے تھے کہ ایک غریب شخص روتے ہوئے آیا اور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا، حضرت میں شدید مشکل میں ہوں، شدید پریشانی میں ہوں، میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں دن بدن قرض میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آتی ہے، گھر میں فاقے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماریوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ تو غوث پاک سے کہنے لگا کہ جناب مجھے اب کوئی ایسا عمل بتا دیں، امیر ہونے کا ایسا راز بتا دیں کہ میرے حالات اب بدل جائیں، اب مجھے کسی آسرے میں نہ رکھیں، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیں۔ تو غوث پاک نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اپنی زندگی میں صرف یہ 2 جملے شامل کر لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ 2 خفیہ جملے لازمی شامل کرنے چاہیے۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں وہ شخص، وہ غریب، وہ تنگدست، وہ مشکلوں پریشانیوں میں گرا ہوا شخص جیسے ہی اپنے گھر میں گیا اور اس نے پہلے دن یہ 2 جملے غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے، ٹھیک اسی شام وہ غوث پاک کے پاس دوبارہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ کہتا ہے، حضرت میں نے زندگی میں ہر وظیفہ آزمایا، میں نے ہر تسبیح کو آزمایا، لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرضے ایک دن میں اللہ پاک کے حکم سے معاف کروا دیے، میری جان میں جان آ گئی، کیسا ہے میرے آدھے جو مسئلے زندگی کے وہ حل ہو گئے۔ اب غوث پاک نے فرمایا، بیٹا تو روز یہ 2 جملے پر جب تک تیری زندگی ہے، تجھے کبھی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے کسی اور عمل وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اور وہ شخص، دوستو بھائی بہنوں، آپ جانتے ہیں اس 2 جملوں سے اللہ پاک نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنایا اور اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا کہ اس نے جو مانگنے والا تھا مانگنے والے سے بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی وہ 2 جملوں کو جاننا چاہتے ہیں جو غوث پاک کے سچے راز ہیں، تو تمام غریبوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میں یہ جملے آپ کے سامنے میرے دوستوں غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے آپ کے حوالے کر کے جلدی سے چلا جاؤں گا۔ تمام غریب اگر اس ویڈیو کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو آپ نے اللہ کے حکم سے میرے دوستو زندگی میں ایک بار سکون سے، اطمینان سے اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، روز پڑھیں اور روز اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے دیکھیں۔ یہ 2 جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان 2 جملوں کو اللہ پاک اتنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو ترتیب غوث پاک نے بتا دی ان 2 جملوں کے بارے میں، دیکھیں ان 2 جملوں کو میں نے اپنی زندگی میں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا، لیکن جب غوث پاک نے انہیں اکٹھا کیا اور ان کی جو ترتیب اور ان کے ساتھ جو خفیہ چیزیں شامل کی، میرے دوستوں ایک اگر 10 سال کا بچہ بھی چاہے نا بڑے آرام سے پڑھ لے، لیکن کمالات معجزات دیکھ کر میرے دوستو پڑھنے والا اس عمل کا دیوانہ ہو جائے، نشہ لگ جائے، یعنی اس عمل کے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے۔ دیکھیں میں نے یہ عمل 2 جملے بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمائے ہیں، میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں مشکلوں میں، آپ یقین کریں میں نے ان 2 جملوں سے فقیروں کو، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پاس ایسی بہنیں بھائی بھی آتے ہیں جیسے کہ جن پر قرضہ ہے، جن پر بیماری ہے، جن پر بے اولادی ہے۔ کئی ایسی بہنوں کو میں نے یہ عمل دیا جن پر سسرال کا ظلم تھا، شوہر ظالم، ساس ظالم، مختلف ظلم زیادتی میں گرے ہوئے۔ یقین کریں ایک دن میں نے لوگوں کو، ظالم شوہروں کو ان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ اب جلدی سے یہ 2 جملے سن لیں۔ اب پہلا جملہ کون سا؟ دیکھیں پہلا جملہ بالکل آسان ہے،
आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। देखिए, पढ़ना किस वक्त है? किसी वक्त जब आप चाहें, किसी वक्त जब आप चाहें। सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, रात पढ़े, किसी वक्त भी पढ़े। किसी मुश्किल के लिए, किसी हाजत के लिए तन्हाई में बैठकर अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन भरोसा करते हुए दिल में वसवसे नहीं रखना। अब आपने सबसे पहले नंबर पर दुरूद शरीफ पढ़ना। देखिए, अमल आपको बताने लगा हूं। पहले पहला जुमला पढ़ना है, फिर दूसरा जुमला पढ़ना है, फिर अल्लाह पाक से मांगना है। बस ये 3 काम करने। चौथा काम इस अमल में नहीं है। चौथा काम इस अमल में नहीं है। ये कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है, 2 बार ये 3 बार वो नहीं। ये अमल सीधा पहले वजीफे की तादाद और फिर दूसरे वजीफे की तादाद जो गौसे पाक ने बताई है, जिस तरतीब से, जो चीज जिस तरतीब से गौसे पाक ने बतला दी है, उसी तरतीब से आपके हवाले करूंगा। अपनी तरफ से एक जर्रा बराबर भी इसमें कमी पेशी ना आपने करनी है, ना मैं करूंगा। अगर वाकई अपने आप से, अपने घर से, अपनी जिंदगी से मुखलिस है, तो ये 2 जुमले आपने पढ़ने गौसे पाक के। अब आपने सबसे पहले जुमले को समझना। देखें, पहले नंबर वाला जुमला आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज पहले जुमले के साथ एक वर्ड शामिल करना है जो गौसे पाक का ऐसा राज है, गौसे पाक ने जिसके बारे में अल्लाह की कसम खा के फरमाया कि हर गरीब ये 2 अल्फाज लाजमी पढ़े। तो जिसमें से पहले 2 अल्फाज कौन से हैं? देखें, पहले नंबर पर आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है, लेकिन गौसे पाक के राज से, अपने तरीके से नहीं। आप जो पढ़ते हैं, मैं पढ़ते आए हैं, ये अस्तगफिरुल्लाह। देखें, अस्तगफिरुल्लाह जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है कि इस्तगफार पढ़ो, मैं तुम्हें खजाने दूंगा, मैं तुम्हें इनामात दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लेकिन पहले नंबर पर आपने पहला जो जुमला है अस्तगफिरुल्लाह, इसके साथ आपने अल्लाह पाक का ऐसा नाम शामिल करना है जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं। फिर इसके बाद दूसरे जुमले की तरफ जाएंगे। अभी पहले जुमले की बात हो रही है, पहला जुमला और साथ में अल्लाह पाक का नाम। ये वजीफा दुनिया के तमाम बड़े बादशाहों का वजीफा है। और साथ में जब आप लोग दूसरा जुमला शामिल करेंगे मेरे दोस्तों, तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। पहले ही दिन आपके 80 से 90% इंशाअल्लाह जिंदगी के मसले खत्म हो जाएंगे। और फिर दूसरे दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज अपनी जिंदगी में तब्दीली को आते हुए देखेंगे। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर नबी करीम रऊफ और रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, गौसे पाक की बताई हुई तरतीब आपके सामने पूरी शेयर की जा रही है, तो ये वीडियो आपने जितना हो सके आगे शेयर करना है। और मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए कि ये करो, सिर्फ अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ। देखें, मैं भी तो अपने सीने के राज बता रहा हूं ना। मैं चाहता तो अपने दिल में दबा लेता ये 2 जुमले, लेकिन देखें, देने वाली जात रखती है। न मैं आपको दे सकता हूं, ना गौसे पाक दे सकते हैं, देगा मेरा रब्बे करीम। लेकिन पढ़ना अल्लाह के वली की बताई हुई तरतीब से। जिंदगी में एक बार पढ़ ले, इस अमल के दीवाने बन जाएंगे। अब आपने पहले नंबर पर देखें अस्तगफिरुल्लाह, जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है कि इस्तगफार पढ़ो, मैं तुम्हें खजाने दूंगा, तुम्हें इनामात दूंगा, सब कुछ दूंगा। लेकिन आप में से अक्सर लोग कहते हैं जनाब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, मेरे हालात नहीं बदले। तो आज तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला की जात पर यकीन भरोसा करते हुए एक ही दिन में बेड़े पार करने वाले गौसे पाक के इस अमल का पहला वजीफा अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपने 21 बार पढ़ने की तादाद नोट कर लें। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तरीका तो आम हो गया। आप कहेंगे नया क्या है, यूनिक क्या है? देखें, असर करने वाली चीज क्या है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसी तकदीर बदलेगी मेरे दोस्तों कि लोग रोक रोक कर पूछेंगे कि बेटा एकदम तेरी जिंदगी में इतनी तब्दीली कहां से आ गई? तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, तू तो कल तक मांग रहा था, लेकिन आज जिंदगी में ऐसा मुकाम भी आ गया कि तू बांट रहा है।
मेरे दोस्तों ऐसा मौका इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में आएगा। आपके ऊपर जुल्म, ज्यादती, गरीबी, कर्जा, बीमारी, बेऔलादी, बंदिशें, दुनिया जहां के कर्जे हैं, कोई मसला है, ये अमल अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ऐसा आपकी मुश्किलों से जान छुड़वाएगा कि आप लोग सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाना। देखें, इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन, भरोसा पूरा रखना। देखें, आप लोग क्या करते हैं, अमल शुरू होने से पहले यार पता नहीं अमल असर करेगा नहीं। देखिए, दिल में वसवसे ना रखें, अल्लाह की जात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा रखें। मेरा आपको चैलेंज सिर्फ एक दिन का है। देखें, ऐसी तस्बीह, ऐसा राज आपने अपनी जिंदगी में न पढ़ा होगा, ना सुना होगा। अब आपने, देखें, अब मैं पहला वजीफा आपको बताने लगा हूं, फिर दूसरा जुमला बताकर मैं चला जाऊंगा। अल्लाह वालों, पढ़ लोगे। देखें, दिन की, वक्त की, जगह की, देखें सारे दिन अल्लाह के, चाहे पीर को पढ़े, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, सारे दिन अल्लाह के, सारी रातें अल्लाह की हैं, चाहे सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, घर में है, दफ्तर में, और एक दिन में जितनी बार चाहे पढ़े। एक बार का अमल पढ़ने में आधी मिनट लगती है। अगर आधी मिनट लगाने से आपकी गुर्बत, गरीबी, लाचारी, बीमारी, फकीरी, जुल्म, ज्यादती, देखें अगर आप मोहब्बत में नाकाम है, किसी से मोहब्बत करते हैं, या आपकी शादी में कोई रुकावट है, या अच्छे रिश्ते नहीं आते, कुछ भी मसला है, तन्हाई में बैठ जाए। अगर आप चाहते हैं कि गैबी खजानों की मुंह खुल जाए, अल्लाह की तरफ से कोई मदद आना शुरू हो जाए, गैब से दौलत वाले हाथ, अल्लाह के हुक्म से कोई रिश्तेदार, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा बंदोबस्त बन जाए कि आप कहें कि ये तो मेरे वहमो गुमान में ना था, आप कहेंगे ये तो नामुमकिन था, ये मुमकिन कैसे हो गया? क्योंकि अल्लाह पाक का लाडला अमल पढ़ रहे हो। देखें, अल्लाह ने इन दो जुमलों में इतनी ताकत रख दी है, और जब अल्लाह के वली की बताने की निस्बत से आप इस अमल को पढ़ोगे, मेरे दोस्तों, नाकामी का 1% भी चांस ना रहेगा। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, आपने कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो मेरे गरीब दोस्तों, आपने सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना है। अगर आप ये भी नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह वालों कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद है। फिर आपने वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अमल का पहले नंबर वाला वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी, देखें अगर आप में से कोई बहन भाई कहता है कि भाई मुझे दुरूद शरीफ भी नहीं आता, देखें तो भी अमल नहीं छोड़ना। तो भी ये दो जुमले आपने तन्हाई में बैठकर सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने शुरू करना है। देखें, वैसे ये अमल का जो असल तरीका है वो यही है कि एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जाए, और ये दो जुमले, पहले पहला जुमला अस्तगफिरुल्लाह का बताई हुई तरतीब से, फिर दूसरा, और फिर इसके बाद अल्लाह पाक से मांगा जाए। मेरे दोस्तों, नाकामी का 1% भी चांस नहीं। देखें, मैंने पहली बार जब जिंदगी में ये दो जुमले पढ़े, पहले ही दिन अल्लाह पाक ने मुझे, मेरे दोस्तों अभी मैं आपको कहूंगा ना, आप कहेंगे ये झूठी बात है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, इस अमल ने मेरे बंद कारोबार को चला दिया, मेरा कर्जा माफ करवा दिया, मेरी बीमारी दूर करवा दी, और मुझे पहले ही दिन मेरे दोस्तों 1,80,000 रुपए का ऐसा मौजज़ा हुआ कि मेरा दिमाग हिल गया। मैं इस अमल का दीवाना हो गया। मैं रोजाना इस अमल को पढ़ता हूँ, और अल्लाह मुझे रोज नवाजता है, अल्लाह मुझे रोज देता है। जो लोग कहते हैं ना कि वजीफे असर नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मेरे बच्चे, मेरे गरीब, जिंदगी में कोई सच्चा अमल पढ़ ले। तूने जिंदगी में कोई सच्ची चीज पढ़ी नहीं है, तुझे लोगों ने बेवकूफ बनाया। ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। तू लोगों की बातों में आकर
यहाँ वहां की वीडियोस देखकर अपना वक्त तो जाया करता गया, लेकिन तूने जिंदगी में कोई सच्ची चीज बेटा नहीं पढ़ी। अगर जिंदगी में एक बार पढ़ ली होती तो सारी जिंदगी यूं ही धर धर की ठोकरें ना खाता, लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। है मेरे करीब खुदारा, जिंदगी में एक बार ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना। अब आपने सबसे पहले नंबर वाले वजीफे को सिर्फ और सिर्फ 21 बार कैसे पढ़ना है। सबसे पहले एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और अपनी किसी देखें, अगर आप चाहें तो अमल को शुरू करने से पहले अपनी हाजतों मुरादों की नीयत भी कर सकते हैं। यही गौसे पाक ने भी फरमाया है कि जो बंदा चाहे तो अपने हाजतों मुरादों की नीयत कर ले। जाती मकान चाहिए, कर्जों से छुटकारा चाहिए, बेऔलादी है, कुछ भी है, जितनी भी हाजतें हैं मुरादें हैं, नीयत भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा नीयतों को ना समझता हो तो बस अमल को खत्म होने के बाद आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांग ले। आज बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपने अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आपने अस्तगफिरुल्लाह को पहले नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर देखें, चाहे सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, किसी वक्त भी तन्हाई में देखें। जब भी एक आधी मिनट के लिए दिन भर में फारिग हो तो इस अमल को पढ़ने के लिए बैठना। अब ये नहीं कि एक हाथ में मोबाइल हो, दुनियादारी में हो, दोस्ती में आरी में हो तो उस वक्त ये अमल नहीं करना। जब भी दिन भर में रात में फारिग हो, पूरी तरह फारिग हो तो एक ही जगह पर बैठकर ये 2 जुमले पढ़ने हैं। अब पहले जुमले को बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखें, फिर मैं दूसरे जुमले की तरफ चला जाऊंगा। अगर पहले जुमले की तरतीब तादाद सही ना हुई, तरीका सही ना हुआ तो पूरा अमल जाया हो जाएगा, फिर सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर रहेगा। देखें, या तो सारी जिंदगी मेरे दोस्तों उस गरीब की तरह तंग दस्ती में रहे, और जैसे ही उसने 2 जुमले गौसे पाक के पढ़े उसकी जिंदगी संवर गई। आपकी भी संवर जाएगी, मेरी भी सफरी है। मैंने ये अमल बेशुमार बहनों भाइयों पर आजमाया है। ये अमल नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। बाप ने पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को 21 बार कैसे पढ़ना है देखें। अस्तगफिरुल्लाह को आपने, मैंने, हम सब ने बहुत बार पढ़ा। कोई कहता है बेटा ऐसे पढ़, वैसे पढ़, तेरे काम बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर तस्बीह पढ़ ली, मैंने हर वजीफा पढ़ लिया, मेरे हालात नहीं बदलते, तो आज अस्तगफिरुल्लाह के साथ अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम जिसका मतलब है गनी कर देने वाला। देखिए, ये दोनों नाम पहले नंबर पे पढ़ने हैं। ये पहले जुमले की बात हो रही है। गौसे पाक के 2 जुमलों में से पहला जुमला आपने अस्तगफिरुल्लाह और उसके साथ अल्लाह पाक का नाम आपने शामिल करना है। ये नाम मेरे दोस्तों कौन सा है? या गनियों का है। और यही वो, देखें, इसको पूरा समझिएगा, पढ़ने का तरीका समझ के जाइएगा। ये ना हो कि जल्दबाजी में, भागा भागी में, टिकटॉक में, दुनियादारी में इस गौसे पाक के मोजज़ाती अमल को गवा दें और फिर सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। बाप ने अस्तगफिरुल्लाह या गनियू, अस्तगफिरुल्लाह या गनियू, अस्तगफिरुल्लाह या गनियू 3 बार मैंने आपको पढ़ के बताया है। तन्हाई में बैठकर आपने 1 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 21 बार अस्तगफिरुल्लाह या गनियू, अस्तगफिरुल्लाह या गनियू, इस तरह 21 टाइम पहला वजीफा गौसे पाक का जैसे ही पढ़ लिया, अब आपने वहीं बैठे बैठे इससे भी ताकतवर वजीफा, दूसरा और आखिरी वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। देखें, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से वजीफे पढ़े होंगे, लेकिन ये वजीफा गुर्बत का आखिरी हल है। दोस्तों, भाइयों बहनों, गौसे पाक ने ये कोई, देखें, कोई तो वजह होगी ना कि गौसे पाक ने सिर्फ यही 2 जुमले दिए और इनके साथ जो तरतीब बताई, कोई तो वजह होगी ना। और पढ़ने वालों की वाकई 100% हालात भी बदले। तो देखें, कुछ पाने के लिए आपने कुछ करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहें कि मुझ पर ऐसे ही आसमान से खजाने उतरे, नहीं, आपने रब को राजी करना पड़ेगा। देखें, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल है और साथ में या
गनियो, जिसका मतलब है गनी कर देने वाला। अब जैसे ही आप 21 बार पहले नंबर वाला जुमला पढ़ेंगे और साथ में जो दूसरा राज, दूसरा और आखिरी जुमला मैं आपको बताऊंगा, ये बताई भी तरतीब से पढ़ लेंगे, आप रब के लाडले बन जाएंगे, आप रब के दोस्त बन जाएंगे। फिर रब के दोस्त के ऊपर ना गरीबी इंशाल्लाह आएगी, ना कर्जा, ना बीमारी, ना बेऔलादी, ना रिश्तों की बंदिश, ना जालिम का जुल्म, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, इसके बारे में सुन ले। ये वो वजीफा है कि तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के तमाम वजीफे, तमाम तस्बीहात, सब कुछ रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर पूरी दुनिया के तस्बीहात रख दें और एक पलड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दें, तो पहला कलमा दुनिया की तमाम वज़ाहिब पर भारी है। लेकिन आज पहले कलमे को आपने गौसे पाक की बताई हुई तरतीब से पढ़ना। देखें, गौसे पाक ने हमेशा पहले कलमे के बारे में बताया कि जिसका रिज़्क बंद हो, जिसके पास पैसों की तंगी हो, तो पहले कलमे को पढ़े। लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर तस्बीह पढ़ ली, मैंने हर वजीफा पढ़ लिया, मेरे हालात नहीं बदलते, तो आज आपने, देखिए मेरे गरीब दोस्तों, आपने इस अमल में पहले कलमे को 21 बार पढ़ना है। लेकिन पहले कलमे का ऐसा राज, ऐसी तस्बीह, जैसे ही आपने अस्तगफिरुल्लाह या गनी, अस्तगफिरुल्लाह या गनी को 21 बार पढ़ लिया, अब आपने वहीं बैठे बैठे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने इस ताकतवर अमल में 21 बार पहला कलमा पढ़ते ही साथ में इसके एक ऐसा जुमला शामिल करना है। देखिए, पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह या गनी को मिलाकर पढ़ना है 21 बार, लेकिन दूसरे नंबर पर पहला कलमा 21 बार अलग पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने एक और जुमला 21 बार इसके साथ शामिल करना है, यानी कि पहला कलमा जब 21 बार पूरे कंप्लीट हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरह पूरा 21 बार पढ़ लें, तो 21 बार आपने अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम शामिल करना है जो पहले कलमे की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा और आपकी जिंदगी से हर मुश्किल परेशानी को जड़ से दूर कर देगा। लेकिन ये तमाम चीजें आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक से मांगना है। आज इंशाअल्लाह बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपने रब्बे करीम से हाथ उठाकर झोली फैलाकर देखें। आपने अल्लाह पाक के बहुत से नाम पढ़े होंगे, लेकिन आज गौसे पाक का बताया हुआ ऐसा नाम जो बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी को दूर कर दे, जिसका मतलब है ऐ मुश्किलों को दूर करने वाले, है परेशानियों को, बीमारियों को, तकलीफों को दूर करने वाले। आपने इस अमल के अंदर सबसे आखिर में पहले कलमे के साथ पहले कलमे को 21 बार पढ़ते ही या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात का ये ताकतवर वजीफा मेरे गरीब दोस्तों इस अमल में शामिल करना है। या हल्लल मुश्किलात एक बार हो गया, या हल्लल मुश्किलात 2 बार हो गया। इस तरह 21 बार ये वजीफा पढ़े और फिर आखिर में या तो दुरूद शरीफ पढ़े या दुरूद शरीफ ना भी पढ़े तो बस दुआएं मांगे, बेड़े पार हो जाएंगे। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपना नाम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि वीडियोस मिलती